So, one topic which is quite important from particularly from ISC point of view, in general also is important since we are dealing with prisms, and that is dispersion. So dispersion, you already know, is splitting up of light into its component colors due to its passage through a prism, right? Now, why the splitting occurs? Because according to Cauchy's formula, it's a formula given by scientist physicist Cauchy, mu is equal to a plus b by lambda square, where a and b are constants. So clearly, with increase in lambda, mu would decrease. Hence, for different lambdas, we'll have different mu. ठीक है? So हमारे पास जैसे ही thin angle prism, because coloring effect को point of view से we always in different optical devices we consider thin prisms. तो thin prism में हमारे पास ये जो deviation है is expressed by mu minus 1 into the angle of prism. So clearly for different lambdas we'll have different mu's leading to different deltas, and hence the splitting up of white light. जैसे light पड़ेगी सारे कलर्स डिफरेंट एंगल से डेविएट करेंगे. क्यों डेविएट करेंगे? क्योंकि डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट होती है. कॉरस्पॉन्डिंगली उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो म्यू होगा वो भी डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया. तो सब में डेविएशन डिफरेंट हो जाएंगी, जिसके कारण अलग अलग एंगल्स पे स्क्रीन के ऊपर जाके कलर्स जो है वो इंसिडेंट होंगे. देयरफॉर यू गेट अ पैटर्न व्हिच वी टर्म एज स्पेक्ट्रम, एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स इज विबग्योर. Violet, indigo, blue, yellow, orange and red. With deviation suffered by violet is maximum, that for red is least, because violet has least wavelength and maximum refractive index, जिसका mu max उसका delta max. इसीलिए ये बैंडिंग इस तरह हमारे पास पिक्चर में आती है. ठीक है? अब इसके साथ हमारे पास कुछ important definitions related हैं जो कि हमें पता होना चाहिए. ठीक है? अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ये वाली लाइन को, एंड आई सी दिस एंगल, एंड देन आई सी नॉट दिस एंगल, इन फैक्ट ये, क्योंकि मेरे पास इमर्जेंट रे के साथ ये. सो पहले मैं इसको ले लेता हूं. जैसे ही मैं इसको यहां पे मिलाता हूं तो मेरे पास ये आ जाता है डेल्टा रेड, डेविएशन ऑफ रेड कलर. और जैसे ही मैं ये पीछे करता हूं ये वाली रे को, जैसे ही मैं ये वाली रे को पीछे करता हूं लाइक दिस, ये यहां पे, ठीक है, देन दिस इज माय डेल्टा वी. ये इंसिडेंट रे और ये वॉयलेट वाली जो हमारी इमर्जेंट रे है ये. ठीक है? सो ये हमारे पास डेविएशंस ऑफ डिफरेंट कलर्स हैं. जो डेविएशन, व्हेन यू सी द डिफरेंस इन डेविएशन between two extreme colors, then that difference, angular difference, is termed as dispersion, angular dispersion. So पहली टर्म मैं जो डिफाइन करने जा रहा हूं, that is angular dispersion. Angular dispersion is delta V minus delta R. So the first term हम डिफाइन करने जा रहे हैं यहाँ पे, that is angular dispersion. Angular dispersion. Delta से डिनोट होती है, and it is equals to delta V minus delta R. ठीक है? The difference in the angles of deviation, between extreme colors. Obviously, it is in degrees. Now, क्योंकि डेल्टा की डेफिनेशन mu minus 1 into a है, this can be written as mu V minus mu R into A.
वो कैसे? ये है म्यू वी, दिस डेल्टा वी विल बी म्यू वी माइनस 1 into a minus mu r minus 1 into a being angle of prism. This will be my delta. जिसको मैं solve करूंगा तो I will be getting this result. Right? Okay. जो next term हम define करने जा रहे हैं, that is dispersive power. Dispersive power. Dispersive power basically किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि कितना एक्सटेंट तक वो मीडियम लाइट को व्हाइल इट passes through it डिस्पर्स कर सकता है. ठीक है? डिस्पर्सिव पावर. डिस्पर्सिव पावर. It is represented by omega. Measures the extent up to which a medium can cause dispersion of light through it. ठीक है? It measures the extent up to which a medium can cause dispersion of light. ठीक है? So omega by definition mathematically is expressed as angular dispersion to mean deviation. Mean means yellow color, right? So this is mu v minus mu r over mu minus 1. A ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है? दोनों रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं. Delta v minus delta r can also be expressed as omega times delta m. Delta m means mean deviation. Mean और येलो कलर की, क्योंकि वो सेंट्रल कलर माना जाता है वेवलेंथ के हिसाब से, येलो कलर, mean deviation. Okay, now these are very two important terms जो कि पूरी जो डिस्पर्शन की स्टडी में हमारे पास काम आती है. Now why we are studying dispersion? Basically कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है, हम कई ऑप्टिकल डिवाइसेस में ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास कलरिंग इफेक्ट ना आए. ठीक है? यहाँ कईयों में कलरिंग इफेक्ट आए और कईयों में चाहते हैं रेज डेविएट हो, कईयों में चाहते हैं रेज डेविएट ना हो. तो जो प्रिज्म के कॉम्बिनेशंस हैं उनको जो हम यूज करते हैं under the condition of no dispersion or no deviation, तो उसके हिसाब से हमारे पास ये फैक्टर्स जो है इनकी स्टडी से और इन पे कंडीशंस पोज करने से हमारे पास ऐसे जो है वो कॉम्बिनेशन डिफरेंट प्रिज्म्स के हमें मिल जाते हैं. राइट? नाउ बिफोर प्रोसीडिंग अहेड with the applications, let us first do one example on this angular dispersion and dispersive power. Right? So let's take that example. Now the question is the refractive indices of a material. The refractive, I'll have to write down the question. The refractive indices of a material the example just a minute, I have to see the example क्योंकि numerical figures चाहिए होती हैं. The refractive indices of a material of red, violet and yellow. The refractive indices of a red, yellow and violet are mu red
mu violet, mu yellow, and this is mu violet. Are 1 for red 1.52, for yellow 1.59, and for violet 1.62. This is given to us. Calculate the dispersive power of a prism of refracting angle (40°). ठीक है, सो ओमेगा इज डेल्टा V माइनस डेल्टा R, दिस इज माय एंगुलर डिस्पर्शन, ओवर डेल्टा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू V माइनस म्यू R ओवर म्यू फॉर येलो माइनस 1, राइट। सो दिस रेशियो वुड बी म्यू वॉयलेट 1.6 इंटू, हाँ ये अभी तो ये ओमेगा डिस्पर्सिव पावर तो यही आएगी हमारे पास, दिस इज 1.62 माइनस रेड की 1.52 डिवाइडेड बाय येलो की उसने एक्सप्रेस की हुई है 1.59 माइनस 1। तो इस रेशियो को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी 0.1695. You have to move up to 4 places of decimal, सारे लिखने हैं 0.1695। ठीक है, सो ये डिस्पर्सिव आ गई। बी पार्ट हम इसका फाइंड कर रहे हैं एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट फाइंड एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन जो है दैट कैन बी, इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूले से ले सकते हैं, डेल्टा V माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा टाइम्स ओमेगा, डेल्टा फॉर येलो कलर जो है हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू। अब एक तरीका ये भी है कि डेल्टा V माइनस डेल्टा R मेरे पास दिस इनटू दिस होता है। ठीक है, तो ओमेगा मेरे को गिवन है और डेल्टा y चाहिए, तो डेल्टा y के लिए म्यू माइनस येलो माइनस 1 इंटू ए इंटू ओमेगा, राइट। तो ये वैल्यू सारी अवेलेबल में 1.59 माइनस 1 इंटू 40° इंटू ओमेगा 0.1695। तो ये वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो जनरेट हो जाएगा। Calculate the dispersive power of a prism of refracting angle we'll have to make a small change here, question में थोड़ा सा change है। Calculate the dispersive power of a prism of this prism of mean deviation 40°. It's not slight change here of refracting angle, उससे भी हो सकता था, पर जो क्वेश्चन है वो ये है, calculate the dispersive power of prism of mean deviation 40°, not angle of prism। अगर वो होता फिर तो ऐसे ही था। अब mean deviation, येलो कलर की डेविएशन उसने हमें गिवन ही है एक तरह से, तो we need not do apply the formula। हमारे पास मीन डेविएशन गिवन है 40 इंटू 0.1695, ये हम सीधा यहाँ यूज कर देंगे। उसने मीन डेविएशन एक्चुअली दी थी, नॉट एंगल ऑफ द प्रिज्म। वो
गलती से मैंने उधर लिख दिया, तो दिस विल टर्न आउट टू बी 6.78 डिग्रीज, 6.78। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इन दोनों पैरामीटर्स की डिस्कशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हाउ टू कंबाइन द प्रिज्म्स टू गेट द कंडीशन ऑफ acromatic combination, condition of achromatism. Achromatism means no coloring effect. ठीक है, so combination of prisms for no deviation, और सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर लेंगे कॉम्बिनेशन of prisms for no dispersion, right? दोनों ही केसेस में हमारे पास जो कंडीशन है वो हमें बेसिकली निकालनी है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स फॉर नो डेविएशन, डेविएशन दैट मींस लाइक delta V the deviation for two prisms, we have two different prisms and we want that there should be no deviation, that is delta plus delta dash must be 0, or mu minus 1 into a plus mu dash minus 1 into a dash is equals to 0. This becomes a condition, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस कंडीशन में हमारे पास a dash turns out to be minus mu minus 1 over mu dash minus 1 into a. Negative sign suggests that prisms must combine by placing them opposite to each other. Them opposite to each other. That means अगर ये एक प्रिज्म है आपका, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, इस तरह से, तो दूसरा प्रिज्म आपका ये होगा, दिस विल बी ए डैश और ये आपका ए हो जाएगा, और इनके कॉम्बिनेशन से ए, व्हेन रे ऑफ लाइट विल एंटर, सो इट विल हैव नो डेविएशन बट देयर विल डेफिनेटली बी डिस्पर्शन, नेट dispersion will be there, and that net dispersion will be delta V minus delta R plus delta V dash minus delta R dash. ये मेरे पास नेट डिस्पर्शन आ रही है एंगुलर फॉर्म में, नेट डिस्पर्शन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको हम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, ये लोग मीन कलर लेने के लिए डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश बाय डेल्टा मीन, ऑब्वियसली मीन ही हो जाएगा, डेल्टा डैश, ठीक है, ये आ जाएगा ओमेगा डेल्टा प्लस ओमेगा डैश डेल्टा डैश। तो ये वाली नेट डिस्पर्शन बैठ जाएगी, राइट। अब जो नो डेविएशन है, वो हम जो है वो इसको फर्दर हम, क्योंकि डेल्टा प्लस डेल्टा डैश हमारे पास 0 था, सो वी कैन रिप्लेस
डेल्टा डैश बाय माइनस डेल्टा, डेल्टा डैश बाय माइनस डेल्टा फ्रॉम 1, so we'll get delta omega minus omega dash. अब डिस्पर्सिव पावर दोनों के डिफरेंट है क्योंकि दो डिफरेंट हर तरह के प्रिज्म लिए हैं हमने, so this cannot be zero value and hence we find that there will be some non-zero value of net dispersion. ठीक है, इसी तरह से ये सिंपल सा एनालिसिस है, इसमें कुछ लंबा चौड़ा है नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस हम कर रहे हैं ताकि कल को क्वेश्चन आ जाए, आए भी हुए हैं आगे। And combination prisms for no dispersion. No dispersion जैसे हमने अभी कहा that delta V minus delta R plus delta V dash minus delta R dash that must be zero. और जैसे हमने यहाँ पे डेल्टा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाया था ओमेगा डेल्टा प्लस ओमेगा डैश डेल्टा डैश इक्वल टू जीरो। कैसे? जैसे हमने पीछे बनाया था डेल्टा से मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा से डिवाइड करो, डेल्टा डैश से मल्टीप्लाई, डेल्टा डैश से डिवाइड करो। वो मीन कलर के लिए डेल्टा स्टैंड्स फॉर बेसिकली यहाँ पे वो मीन कलर की डेविएशन हम ले सकते हैं। ठीक है, ओमेगा डेल्टा प्लस ओमेगा डैश डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू 0। नाउ ये कंडीशन हमारे पास आ गई। सो नेट डेविएशन हमारे पास देखते हैं कि क्या होगी। नेट डेविएशन इज डेल्टा प्लस डेल्टा डैश, डेल्टा कॉमन 1 प्लस आई कैन टेक दिस एज d 1 प्लस डेल्टा डैश बाय डेल्टा एंड दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा डैश उस तरफ ले जाओ, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा डैश फ्रॉम हियर सिंस डेल्टा डैश बाय डेल्टा इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय ओमेगा डैश। तो अब naturally omega by omega dash ये 1 होना नहीं because they are of different materials, so it is a non-zero quantity and hence you will get net deviation। ठीक है ना, इस रेशियो में 1 कभी भी नहीं होना तो डेविएशन आपका डेफिनेटली आ जाएगी। तो इस तरह से हम कंडीशंस पोज करके और जो है वो वैल्यूज अपनी निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आप कॉम्बिनेशंस ले सकते हो। ये आपका पहला प्रिज्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जब आप एक्सपैंड करते हो, बिकॉज यहाँ पे भी एक रिलेशन हमारे पास बनता है जहाँ पे म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए डैश इज नेगेटिव, suggesting that the two prisms must be placed inverted with respect to one another। तो एक a डैश ये हो जाएगा और यहाँ पे भी ये हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग मटेरियल्स हैं, तो उसके हिसाब से कंडीशन के हिसाब से आपके पास जो है वो कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे उनमें प्रिज्म्स मस्ट बी प्लेस्ड सच दैट वन इज इन्वर्टेड। एक की वर्टेक्स एक का जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है बिल्कुल ऑपोजिट सेंस में होगा, दूसरे के बेस के साथ इस तरह से टच करेगा। सो वन इज प्लेस्ड इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द अदर। ठीक है, ऑपोजिट या इन्वर्टेड वर्ड बेटर होगा, ऑपोजिट कह लो और इन्वर्टेड और इन्वर्टेड। ठीक है, ऑपोजिट ईच अदर और इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। राइट, सो दिस वाज माय डिस्कशन ऑन डिस्पर्शन। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया है, दैट इज रेनबोज, बिकॉज रेनबोज के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, so that part we are also going to study।